नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। शाही ईदगाह और मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक की अर्जी खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू फरीक की अर्जी को करार दिया काबिल समाअत। वायनाड में महलूकीन की तादाद में मुस्तकिल हो रहा है इजाफा। 256 लोगों की मौत। वायनाड अब भी रेड अलर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है। एससी और एसटी में झैली दर्जाबंदी की दी इजाजत। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिंदुस्तान को मिला एक और तमगा। शूटर स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और बैतुल मुक़द्दस के मुहाफ़िज़ शहीद इस्माइल हानिया की आयतुल्लाह खामनेई ने पढ़ाई नमाज जनाजा। दोहा में किया जाएगा सुपुर्द खाक। केरल के वायनाड में जमीन खिसकने के सबब पेश आए हादसे में अमवात की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। तबाही के तीसरे दिन भी राहत रसानी का काम जारी है। फौज, एनडीआरएफ और पुलिस के 500 से 600 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। हादसे में 256 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 196 लोग जख्मी और सैकड़ों अफराद लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से बड़ी तादाद में लोगों को महफूज निकाला है। वायनाड में मौसम अब भी खराब है और शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है। We have been here in support of the Kerala government and the people of Wayanad since 30th morning. So far we have recovered almost 100 plus bodies. Overall the body count is much more. In addition, we have helped rescue a number of people from the trapped areas. We have also inducted almost 500 soldiers into this. This is in addition to the Air Force, Navy and other components of the forces that are here. We, as of now, are on the third day of the operation, which we have launched. Almost all people who are trapped and needed rescue have been rescued. Now we need to get into the houses and see if there are any people who are trapped inside the houses whom we cannot find. For that we need heavy equipment. Our bridge is nearing completion at 10 o'clock today, and once the bridge comes up, it will be a major change. We will be able to induct all equipment into the site. And once the equipment goes into the site, then we will be able to dig for people, heavy equipment. That is what we are planning to do. So by 10 o'clock, this bridge, which has been constructed by our efforts day and night, has now come up, will be coming up at 10 o'clock. And this is going to change the dynamics of the rescue operations, and that's what we are hoping for. And what would be the focus? The focus primarily is to now search for people who are trapped inside houses, if at all. As of now, we are still expecting that there could be someone who needs help, where mud has gone over their houses and they have got some space to stay inside, but we are not able to see here. That would be our focus. For that, we would induct heavy equipment inside inside the area which is affected. We have done 256 autopsies. 256 means that includes body parts also. So we count, if there's an amputated leg, we count it as one. So it's like 256, and we have handed over 154 bodies to the district administration, and we are taking the genetic samples of this amputated parts or the body parts. And it's such an unfortunate incident, and the people they are going through a huge mental trauma. So our government has done everything, and Honorable CM has asked for the support of Army, and we were provided with the support of Army, Air Force, and more than 1,300 Army personnel are there today. So they have built that bridge, and so we'll be moving more machines to this particular place, and so we are hoping that we can find more people who are in the missing list. And also Honorable CM will be coming to Wayanad today, and he is convening a official meeting, and after that there is an all-party meeting. And also we have I have visited the hospitals and also the camps. We do have 11 camps, and we don't have more bodies to do the autopsy now. So everything is done. Till 7 a.m. it's done. The district administration was telling that there are more than 220, but still they have to get
the details, because some has gone to their relatives' houses in some other places like that, so they have to get the details. लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड का दौरा किया। दोनों लीडरान ने मुतासरा इलाके के हालात का जायजा लेने के लिए दौरा किया है। The administration, volunteers, I'm very proud of everyone who's working here, but it's very, very sad to see. Well, let's see. I mean, to me, this is a national disaster for sure. But let us see what the government says. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. It is very deep to your heart. So how you feel after this disaster? And you are also a part of this system. You are also part of this Wayanad. I feel how I had felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father, they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it, it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad, and I'm sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. It's a terrible tragedy for Wayanad, for Kerala, and for the nation. We've come here to see the situation. It's quite a painful experience to see how many people have lost family members, lost houses. It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them, So it's been quite a difficult day for me, but we are going to try and help make sure that the survivors get what is their due. A lot of them want to be relocated, so I hope the government takes that into account. There is still a lot of work to be done here, but it's a huge tragedy. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses. I feel very similar to what my brother feels. We have spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We've met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother, and he failed. Not just his mother, his whole family. His whole family. And he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. We can only imagine the kind of pain that people are suffering. And as my brother said, they've lost their entire families. So we are here to give as much comfort and support as we can, to help in any way we can. And I am also very proud to see how everybody is coming together, not just from Wayanad and from Kerala, but from the whole country, to help everybody who is going through this. And I think that at times like this, all of us
should just do everything that we can to support our countrymen and those who are suffering. There's been a big tragedy in Himachal as well today. I think perhaps over 40 people have passed away there as well in a very similar situation. So our condolences and wishes for them also to get over this tragedy as best they can, and all our support and help to everybody. And I just have no words actually. Ma'am, there are so many people who lost their whole family. Do you have anything in mind for them? So our state governments have also offered help. We are helping from here, and of course the administration here is also doing all they can. And when we're here tomorrow, we are thinking of sitting down and just charting out how many affected people there are, what all we can do, what help is coming, how much support is coming, and how we can assist especially the children who are left on their own. We're here. I think one thing is very clear, that everybody who has been affected, who is living in this area, most of them are saying that they don't want to go back and live in the same area, because it's not the first time it's happened there. So I think we'll have to think of some solution where they can be rehabilitated in a safer area. मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से मुतासिर इलाकों का हवाई जायजा लिया। वाज़ेह है कि बारिश की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में मंडी एडीएम मदन कुमार ने बताया है कि 31 जुलाई को रात 11 बजे बादल फटने की खबर मिली। इंतजामिया ने राहत बचाव का काम शुरू किया है। 2 लाश बरामद हुई है, 8 लोग लापता हैं और 3 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। कुछ लोगों के दबे होने का खदशा है। ब्यास नदी की आबी सतह बढ़ गई है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों की इमदाद पहुंचाई जा रही है। सुबह से प्रदेश में अत्यधिक बारिश हो रही थी और आज सुबह 4:40 के करीब क्लाउड बस्ट हुए। मंडी जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बस्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग हैं और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। सुबह से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तकरीबन 7 बजे से लगातार मेरे संपर्क में है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है और अभी अगले 36 घंटे में यह और अधिक बारिश होने की संभावना है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारी लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नदी नालों के किनारे नहीं जाएं और जहां भी नदी नालों में क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए, अभी अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। इस दृष्टि से हमने सारी जगह डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सर, बांध से पानी वगैरह छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारी एयरफोर्स की जो
सेना है उसको हमने तैयार रहने के लिए कहा है, एयरफोर्स को भी तैयार रहने के लिए कहा है। और अभी अधिकारियों की बैठक में सभी अधिकारी चीफ सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में बैठकर इसका जायजा ले रहे हैं। मैं और रेवेन्यू मिनिस्टर साइट पर विजिट करने के लिए, जैसे ही मौसम खुलता है हम इसमें साइट पर मैं खुद भी जा रहा हूँ। सर, केंद्र सरकार मेरी देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है। उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हमने एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी और भेजने की अनुमति दी है। मेरी प्रदेश के जो हमारे नेता जेपी नड्डा जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी 2 बार फोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सब से यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से बात हुई है। मुझे राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया कि उनसे भी मेरी बात हुई है। प्रियंका गांधी जी से भी मेरी बात हुई है, सभी से मेरी बात हुई है और सभी ने खुद फोन करके मुझसे पूछा है। हमने कहा कि प्रदेश की जो अभी स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन जान माल का भी नुकसान हुआ है और प्रदेश की सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। मनाली जो है, मनाली पूरे देश से कट चुका है। कुल्लू तक आवाजाही में भी प्रभाव, आवाजाही में भी जो रुकावटें पैदा हुई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा सभी प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि वो इस समय नदी नालों के पास ना जाकर हम नदी नालों से दूर रहें। यही मैं उनसे अपील करना चाहता हूं और हम इस चुनौती को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। पूरे मंत्री परिषद के मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और सभी प्रकार से हम लोग इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। अब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलसल रेल हादसे हो रहे हैं जिस पर अपोजिशन हमलावर है। इसके बाद रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो रील बनाते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी तरह रील बनाकर दिखाने वाले नहीं हैं। उन्होंने साबिका हुकूमत पर भी इल्जाम लगाए हैं, जिस पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी के वजीर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते। गुज़श्ता 2 महीनों में 4 मालगाड़ियां पटरी से उतर गई हैं, 14 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए हैं। इसके बावजूद वजीर रेल ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और अपोजिशन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष जी। लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा, 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज्यादा सुविधाएं दी गई। और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोको की कैब, लोकोमोटिव की कैब
माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं? हम बीजेपी मंत्रियों के द्वारा ये परंपरा देख रहे हैं कि अपनी विफलताओं के लिए वे नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते और आरोप डालते हैं इतिहास पर। पिछले 2 महीनों के अंदर लगभग 4 मालगाड़ी डिरेल हो चुके हैं। लगभग 4 लोगों की हत्या जुलाई में हुई। जून में जब कंचनजंगा कोलाइड हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तब 10 लोगों की मृत्यु हुई। तो लगभग 2 महीनों के अंदर 4 मालगाड़ी डिरेल हुए, लगभग 14 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई और लगभग 70 लाख लोग घायल हुए। इसके पश्चात भी आज रेलवे मंत्री ने किसी भी प्रकार का नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली। हम विपक्ष पर आरोप लगाया, विपक्ष को धमकाने की कोशिश की और अपनी जो नैतिक जिम्मेवारी लेकर जो खुद इस्तीफा देना चाहिए उन्होंने वो काम नहीं किया। पिछले साल ओडिशा में 2023 में लगभग 300 पैसेंजर्स की मृत्यु हुई बालासोर में, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी आज रेलवे मंत्री को देना चाहिए था। पिछले 1-1.5 साल में रेलवे के हादसे बढ़ रहे हैं और मंत्री सिर्फ रील बनाने में व्यस्त। ये रेलवे मंत्री नहीं है, रील मंत्री है। ये रेलवे मंत्री नहीं है, डिरेलमेंट मंत्री है। और सिर्फ नैतिक तौर पर कि पिछले 2 महीनों में जब 14 लोगों की मृत्यु हुई, 70 लोगों की हत्या हुई, पिछले साल 300 लोगों की मृत्यु हुई, उसी आधार पर उनको आज इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन भाजपा की ये परंपरा है, चाहे शिक्षा मंत्री हो वो नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेता, चाहे रेलवे मंत्री हो वो जिम्मेवारी नहीं लेता। और जिस प्रकार का भाषा का उपयोग, जैसे मुंह में कीचड़ भरा हो और सदन के अंदर कीचड़ फेंकने का काम करते हैं और देश के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। इसके विरोध में जो पूरा उनका जो वक्तव्य था संतोषजनक नहीं था और लोगों के प्रति जो जवाबदेही थी उससे वो भागे। इसलिए आज सारे इंडिया अलायंस के पार्टीज ने, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, लेफ्ट पार्टीज, हम सभी ने वॉकआउट किया। मथुरा की शाही ईदगाह और मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम फरीक की दरखास्त को खारिज कर दिया है। वाज़ेह रहे कि हिंदू फरीक के मुकदमात के जवाज पर सवाल उठाने वाली अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया और कहा कि हिंदू फरीक की अर्जी काबिल समाअत है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 6 जून को समाअत मुकम्मल कर ली थी और फिर फैसला महफूज कर लिया था। आज अदालत ने मुस्लिम फरीक की अर्जी को खारिज करने का हुक्म सादिर किया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से मुताल्लिक मजमूई तौर पर 15 अर्जियों के ताल्लुक से अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले पर यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है और कहा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एक तारीखी फैसला सुनाया है। वाज़ेह रहे कि अदालत ने दर्ज फहरिस्त ज़ात एससी और दर्ज फहरिस्त कबाइल एसटी जुमरा के अंदर झैली दर्जाबंदी की इजाज़त दे दी है। एससी और एसटी के अंदर झैली दर्जाबंदी के जवाज़ से मुतालिक मामले पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने जुमरात को यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 7 जजों की आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में हिंदुस्तान को आज एक और बड़ी कामयाबी मिली है। शूटर स्वप्निल ने कांस्य का तमगा जीत लिया है। स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में यह ब्रॉन्ज मेडल जीता और हिंदुस्तान का परचम पेरिस में बुलंद कर दिया। स्वप्निल किसाले की यह तारीखी जीत है क्योंकि इस जुमरे में ओलंपिक मेडल जीतने वाले वो पहले हिंदुस्तानी हैं। So exciting and so proud moment for all of us, and when I saw his race, like we were shooting, and it was so nervous for me also. My heart also started beating because he was in 6th and came to 5th and 4th. Once he came to 2nd also, then he had again gone to 4th, and so exciting, especially for the last minute. It was so exciting and it had a lot of heartbeat, and but he has won it, and it's a proud moment for all of us, and it's a great moment that because shooters are doing good and they are making history now. Ma'am, day 5 and already 3 medals we have. Our shooters have given us a great start. Manu Bhakar winning 2 medals. Yes. Then you have Sarabjot winning a medal, and now we saw Swapnil clinching a medal. So brilliant start by the shooters. Yes. Because Manu actually earlier also we were expecting medals because we were in frequent contact with her personal coach Jaspal Rana, and he also had lot of problem, and we had helped him every way to accompany her here, and so we know that Manu is going to win the medals. But now she won 2 also, and we were expecting a next medal also. It will be a history, and more medal from shooting I am expecting. Ma'am, you were in India and I asked you, then you said we hope to do better than Tokyo this time. Yes. And it seems that double figures we can touch this time. It should be. I'm positive it should be, and I'm hoping that and praying for that. And ma'am, talking about athletics, your favorite sport, and other sports also others are doing so well. How are you looking forward to athletics, especially Neeraj Chopra and other sports too? Athletics is a very toughest event, but we are hoping medal from Neeraj Chopra, and for steeplechase also will be going to do well, and other all I think they'll do their best performance here, I hope. And ma'am, we're talking about Olympic hosting 2036. There are high chances, especially when players are doing so well. What do you have to say about that? Earlier we have no medals, only now we started with the 1 medal, and now we have already won the 7 medal earlier Tokyo Olympics, and this time we are expecting more than the Tokyo Olympics, and by the time when we are hosting Olympics we should be targeting at least top 10. If you think about big, and then we will get little. So बैतुल मुक़द्दस के मुहाफ़िज़ और फ़लस्तीनी अस्करी तंजीम हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को गुज़श्ता रोज़ ईरान की राजधानी तेहरान में शहीद कर दिया गया, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जहां लाखों अफराद ने शिरकत की, जबकि दुनिया भर में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जा रही है। खबर के मुताबिक इस्माइल हनिया की तदफीन जुमे के रोज़ दोहा में अदा की जाएगी। वाज़ेह है कि इस्माइल हनिया उन शख्सियात में अहमियत के हामिल हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस और फ़लस्तीन के वजूद की खातिर अपने जवान बेटों के अलावा खानदान के दीगर अफराद समेत अपनी भी शहादत पेश की है। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।